Dear student, welcome back to our channel Passionators. I am going through a new video, Class 6 English, book A Pact with the Sun, Chapter 6, The Monkey and the Crocodile. This is a story also taken from the Panchatantra. This is Chapter 6, The Monkey and the Crocodile. Cause COVID-19 NCERT and Vidya Bharati reduce some syllabus of all the classes. So chapter 4 and 5 has been reduced. So now I will take this chapter, The Monkey and the Crocodile. These are the chapter, The Monkey and the Crocodile. So I have a request. You can read these pages before to start this video. You can pause my video and read it carefully. After reading it, you can understand our summary and explanation well. In this video, I also give you difficult word and question answer here. I hope you can read before pages, and now I start introduction. In this video you can see the monkey and the crocodile. इस वीडियो में आप मंकी और क्रोकोडाइल के बीच की कहानी को देखेंगे. दिस स्टोरी गिव्स अ मैसेज दैट वी शुड नॉट ट्रस्ट एनीवन ब्लाइंडली. यह कहानी हमें संदेश देती है कि हमें किसी पर भी बिना जानने परखे विश्वास नहीं करना चाहिए. वी मस्ट थिंक बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन. हमें कोई भी निर्णय लेने से पहले एक बार अच्छी तरह से सोच लेना चाहिए. दिस मैसेज हैज़ बीन कन्वेड थ्रू अ फ्रेंडशिप ड्रामा बिटवीन अ मंकी एंड अ क्रोकोडाइल. और यही मैसेज इस स्टोरी में बंदर और मगरमच्छ की स्टोरी के रूप में दिया है. नाउ द टाइम ऑफ समरी एंड एक्सप्लेनेशन. यू कैन लिसन इट केयरफुली. Dear student, this is a story of a very sensible and wise monkey. I hope you can read it before, but now this video making for your request. This is a story of friendship between a monkey and a crocodile. यह कहानी एक बंदर और मगरमच्छ की दोस्ती की है. A monkey lived alone in a fruit-laden tree on a river bank. एक बंदर एक फलों से भरे हुए पेड़ के पास नदी किनारे रहता था. He was very happy. वह बहुत खुश था. But he used to feel lonely. लेकिन अक्सर अपने आप को अकेला महसूस करता था. He wanted to have someone to talk to. वह चाहता था कि कोई उसके साथ रहे, उसका कोई मित्र बने, उसके साथ मस्ती करे, बातें करे. अक्सर वो ये सब सोचा करता था. One day, a crocodile came near that tree and the monkey offered him fruit to eat. एक दिन एक मगरमच्छ उस पेड़ के पास आया और मंकी ने उसे खाने के लिए कुछ फ्रूट्स दिए. The crocodile found it delicious and started coming daily. क्रोकोडाइल को वह बहुत टेस्टी लगे, बहुत स्वादिष्ट लगे और वह प्रतिदिन वहाँ आने लगा. Soon they became very good friend. जल्दी वे दोनों बहुत अच्छे मित्र बन गए. They both liked each other's company. उन दोनों को एक दूसरे का साथ बहुत पसंद आता था. They discussed everything around them like birds, animals, villagers and their problems. वे अपने आसपास की सभी चीज़ों के बारे में बात करते थे, जैसे चिड़िया, जानवर, गांव वाले और उनकी समस्याएं. Their closeness grew day by day. उनकी मित्रता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी. The crocodile did not just eat the fruit himself, but also carried some fruits for his wife. मगरमच्छ केवल खुद ही फल नहीं खाता था, बल्कि अपनी पत्नी के लिए भी कुछ फ्रूट्स ले जाता था. But his wife did not like his friendship with the monkey. लेकिन उसकी पत्नी को बंदर के साथ उसकी मित्रता पसंद नहीं थी. She expressed a wish to eat the monkey's heart. उसने मंकी का दिल खाने की इच्छा जताई. To keep his wife's word, he invited his friend's monkey to have dinner with him.
ना चाहते हुए भी अपनी पत्नी की इच्छा को पूरा करने के लिए उसने अपने मित्र बंदर को अपने साथ खाने के लिए आमंत्रित किया। While taking the monkey to his home, he told him the truth about his wife's wish. जब वह मंकी को अपने घर ले जा रहा था तो नदी के बीच रास्ते में उसने उसे अपनी पत्नी की इच्छा के बारे में बताया। Hearing that, the monkey asked the crocodile to return back to the river as he had forgotten his hut on the tree. मगरमच्छ की ये बातें सुन के बंदर को बहुत आश्चर्य हुआ, परंतु उसने अपने आप को संभाला और मगरमच्छ से कहा कि मैं अपना दिल तो अपने पेड़ पर ही छोड़ आया हूँ, तुम मुझे वहाँ पर वापस ले चलो। द क्रोकोडाइल swam back and reached the river bank. क्रोकोडाइल मूर्ख था और उसे सही बात पता नहीं थी, इसीलिए वो दोबारा नदी के किनारे वापस चल दिया। Monkey quickly jumped onto the tree and threw some fruits to the crocodile and bid goodbye to the crocodile always. बंदर जल्दी से पेड़ पर चढ़ गया और मंकी के ऊपर कुछ फल फेंकते हुए उसने उससे सदा के लिए नमस्ते कह दिया। The crocodile was sad on losing a friend. He shed real tears. मगरमच्छ अपने एक अच्छे मित्र को खो देने पर बहुत दुखी था और वह सच्चे आंसू बहा रहा था, जबकि मगरमच्छ घड़ियालू आंसू बहाने के लिए प्रसिद्ध है, परंतु उसे दुख हो रहा था कि उसकी वाइफ के लालच की वजह से उसने अपने एक अच्छे मित्र को खो दिया। As I told you before, the moral of the story also read here. The person who wants to cheat others will be cheated and lose everything. एक व्यक्ति जो किसी को धोखा देता है वह खुद भी धोखा खाता है और अपना सब कुछ खो देता है। Now the turn of difficult words. So student, you can pause the video here and write it in your notebook. With these difficult words, you can understand your chapter very well. So much requested of my students, I also attach the question of answer in this video. So let's start questions. Question 1. The monkey was happy living in the fruit tree, but his happiness was not complete. What did he miss? मंकी अपने फ्रूट ट्री पर खुश था, लेकिन उसकी जो खुशी थी वह पूरी क्यों नहीं थी? वह क्या मिस करता था? आंसर हियर. The monkey was happy living in the fruit tree, but his happiness was not complete. He had no companion to talk or share with his fruits, so he felt unhappy. फलों से भरे हुए पेड़ पर रहते हुए भी मंकी की जो खुशी थी वो पूरी नहीं थी, क्योंकि उसका कोई मित्र नहीं था जिससे वह बात कर सके और उससे अपने फल बांट सके, इसीलिए वह दुखी था। What did the two friends generally talk about? दोनों मित्र किस बारे में अक्सर बातें किया करते थे? आंसर हियर टू. द मंकी एंड द क्रोकोडाइल became fast friend. मंकी और क्रोकोडाइल बहुत अच्छे मित्र बन चुके थे. They talked about birds and animals. वह पक्षियों की और जानवरों की बातें करते थे. They also discussed the difficulties of the farmers when the rain failed. वह गांव वालों की बातें किया करते थे और उनकी समस्याओं के बारे में डिस्कस करते थे जब वर्षा नहीं होती थी। Why was the crocodile's wife annoyed with her husband one day? एक दिन क्रोकोडाइल की पत्नी उसके अपने पति से क्यों नाराज हो गई? आंसर इज हियर. Crocodile's wife was annoyed with her husband one day because that day the crocodile came home very late usually. क्रोकोडाइल की पत्नी अपने पति से इसलिए नाराज हो गई क्योंकि उस दिन मगरमच्छ और दिनों से भी ज़्यादा लेट आया था. शी हैड टू मैनेज द लिटिल क्रोकोडाइल ऑल बाई हरसेल्फ. उसे अपने छोटे बच्चे मगरमच्छ के छोटे बच्चे खुद ही संभालने पड़े थे. अनविलिंगली टू इन्वाइट हिज फ्रेंड होम. ना चाहते हुए भी मगरमच्छ को अपने मित्र को घर क्यों बुलाना पड़ा? आंसर. द क्रोकोडाइल वॉज अनविलिंगली टू इन्वाइट हिज फ्रेंड होम बिकॉज हिज वाइफ वॉन्टेड टू ईट द मंकीज हर्ड. ना चाहते हुए भी मगरमच्छ को अपने मित्र को घर बुलाने पड़ा क्योंकि वह उसकी पत्नी
मंकी के हेड को खाना चाहती थी। द क्रोकोडाइल डिड नॉट वॉन्ट टू बिट्रे हिज फ्रेंड। मगरमच्छ अपने दोस्त को धोखा नहीं देना चाहता था, सो ही रिफ्यूज टू ओबलाइज हर एंड शाउटेड एंग्रीली एट हर। इसलिए उसने उसकी रिक्वेस्ट को मना कर दिया और एक बार उस पर चिल्ला पड़ा। वॉट डिड द क्रोकोडाइल टेल द मंकी मिड स्ट्रीम। क्रोकोडाइल ने मंकी को नदी के बीच में क्या बताया? आंसर, इन द मिडल ऑफ द रिवर द क्रोकोडाइल टोल्ड द मंकी हिज रियल इंटेंशन फॉर इन्वाइटिंग मंकी होम विच वॉज टू किल हिम। नदी के बीच में मगरमच्छ ने मंकी को अपना सच्चा इरादा बता दिया कि उसने उनको घर क्यों बुलाया है, वह जो कि उसको मारने के लिए था। हाउ डिड द मंकी सेव हिमसेल्फ। बंदर ने अपने आप को किस प्रकार बचाया? द मंकी सेव्ड हिमसेल्फ बाय कीपिंग ए कूल हेड एंड टेलिंग द क्रोकोडाइल दैट ही हैड लेफ्ट हिज हर्ट ऑन द ट्री। मंकी ने अपने आप को शांत किया और उसने मगरमच्छ को बताया कि वह अपना दिल पेड़ के ऊपर छोड़ आया है। द foolish crocodile took the monkey back to the river bank, and on reaching there, the monkey climbed up to the safety of the tree. मगरमच्छ जो कि मूर्ख था, वह बंदर को नदी के किनारे वापस ले आया और वहां जाकर मंकी जल्दी से पेड़ के ऊपर चढ़ गया और उसने अपने आप को बचा लिया। Last but not the least, what does the last sentence of the story suggest? What would the crocodile tell his wife? स्टोरी का लास्ट सेंटेंस क्या बताता है और मगरमच्छ ने अपनी पत्नी से क्या कहा? आंसर इज हियर, द क्रोकोडाइल वॉज सैडर एंड वाइजर। क्रोकोडाइल बहुत दुखी था और समझ चुका था कि मंकी ने उसे धोखा दिया है। He would have told his wife about all that happened and how he broke a great friendship because of her insecurity and greed. और उसने अपनी पत्नी को सारा कुछ बता दिया और उससे कहा कि किस प्रकार उसकी लालच और असुरक्षा की भावना से उसने अपनी इतनी अच्छी दोस्ती खो दी। At last, thank you all to watching my video full, and I also give a update that you can see our video in our Facebook page Passionator at Tech. I have a request, if you like and this video, you can like and subscribe my channels, and if you have any suggestions, then comment below this video. Thank you. Bye. Have a nice day. Goodbye. Bye bye.